Is on the dais, media personnel, and distinguished guests. Thank you so much, Mr. Harkat. So I'll start with the why IMS. Many people would have would have wondered why it is done. Already stage is set by Mr. H.V.S. Krishnan or Mr. Dr. Rakesh Kumar and Dr. Sachin Salves. But I would start with a quote that the war was lost for the want of a shoe nail. It's an age old for the war, and hence the focus on aerospace and defense towards self-reliance in self-reliance towards Atmanirbhar Bharat. So our focus is actually on small equipment, so MSMEs, all the industries are there, and the entire ecosystem is there. I'm here to give you a very quick brief on the about the ecosystem. So earlier there were no policies as such, or there was no vehicle where user, that means the armed forces in Army, in Navy, in Air Force, could directly interact with the vendors and the suppliers. Today we have a supporting policies which is directly from the MOD, from the Department of Defense Production, which is also our supporter. This event is supported by DDP of Ministry of Defense, so we are also grateful to that. So there are policies supporting that, which people are not earlier aware. That, for example, 25% of the work allocation has to come from the MSME. So the government is allocated, so and also created demand. It's not just that it's a policy on the paper; it is happening on the ground, and hence IMS. So the entire ecosystem is there. You have users, which is forces, all the senior officials. You have yesterday we had a distinct opportunity to meet the defense secretary as well, and he is also he has also assured complete participation from his department. Then we have the defense PSUs, so Secretary of Defense Production, as a custodian of DPSUs, which is BEL, HAL, and then Chairman DRDO. So that means the DRDO, the largest R&D agencies of the country. CSIR, which all the CSIR laboratories for the technologies. Then all DPSUs, meaning BEL, HAL, and MSMEs, which I think the numbers have been given by Mr. Sarkar, and the large industry, which means it's not just MSME, it's focused, it's industry-focused, industry-driven aerospace and defense initiatives, which is L&T Defense, Solar Defense, and Bharat Forge. So Mr. Baba Kalyani, the chairman of the advisory board of IMS, and so that's the ecosystem which is coming. So it's really my last couple of minutes on that is everybody here in this room, we all take pride in talking about Operation Sindoor in our own waters. But I think what played a key role is that indigenous items, Akash, BrahMos, even small items which are not made too much public during that time, but small items which were done by our own industry, which were never known. And hence those equipments and such an industry, that participation is there under one roof. We have two halls, as Mr. Krishna has mentioned, all are full. And we had done this in 2023 years also. We have just moved the level up. We had a strong guidance directly from the advisory board member, Mr. Sunil Devdarji, of course, our chief guest during curtain raiser, and which has actually mobilized a lot of industry in Bangalore, which is the ecosystem. So that's a brief on this, and I really, on this momentous occasion of we are in pursuit of Atmanirbhar Bharat, I really thank all the media members for having, and the distinguished guests for having attended this this press brief about IMS, and request your support on making it a wider outreach in the interest of the nation, in the interest of Rashtriya. So thank you so much, and thank you for your precious time. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Sri Jitendra Singh, Chief Advisor of Geoparty Defense and Aerospace. We are thankful to our Chief Guest, Sri Sunil Devdarji, Member, Advisory Board, IMS 2025, and Founder, My Home India, to have kindly taken his precious time out and address us and give us the further guidance on how to make this show the best ever defense-oriented show, IMS 2025. Sri Sunil Devdarji, sir, please. India Manufacturing Show 2025
के आयोजित इस पत्रकार परिषद में उपस्थित सभी मीडिया पर्सन्स को मेरा नमस्कार और सबको छठ की भी शुभकामनाएं और दिवाली की भी शुभकामनाएं। ये 7वीं बार ये शो हो रहा है और मैं पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करने जाने वाला हूँ। पिछले 2 साल पहले जो हुआ था उस समय कृष्णा जी कई बार दिल्ली आए थे, तो कृष्णा जी को इधर उधर लेकर जाने का काम मैं करता था, तो उनको ऐसे लगा कि ये बंदा काम का है, इसलिए उन्होंने मुझे एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया है। अब मेंबर बनाया है तो कुछ काम तो करना ही चाहिए, ऐसे ही नाम के लिए काम करने वाले लोग हैं नहीं हम लोग। तो मैंने कहा कि दिल्ली वालों को, खास करके दिल्ली के मीडिया के लोगों को इस शो की जानकारी होनी चाहिए। दक्षिण भारत में होता है, बहुत बड़ा भव्य होता है, अद्भुत होता है और भारत में अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। क्योंकि पहले आप लघु उद्योग भारती क्या है इसको आप समझिए, लघु उद्योग भारती की आवश्यकता क्या है इसको आप समझिए। हमारे देश में बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं थी, हमारे देश में काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये था कि बड़े पैमाने पर केवल बाहर से ही चीजें खरीदना और उसमें बाकी भी बहुत सारी चीजें होती जिसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हम विदेशों पर ही डिपेंडेंट रह गए थे। वैक्सीन की भी अगर हम बात सुने सोचे तो कोविड के समय ये बात आई कि भारत ने खुद का वैक्सीन बनाया और उससे पहले भी पेंडेमिक्स आकर गए, लेकिन हम वैक्सीन बाहर के देशों से मांगते थे और वो आने में 20 साल, 25 साल, 30 साल लगते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा कि नहीं, हमारा देश वैक्सीन बनाएगा। ये जो भावना है कि हमारा देश बनाएगा, हमारा देश करेगा, ये जब नहीं था तब बहुत बड़े प्रमाण में बुद्धिजीवी जो थे, IITians वगैरह थे, वो सीधे बाहर चले जाते थे कि यहाँ कुछ होना ही नहीं है, वहीं पर जाकर वहीं से सब आना है, तो हमारी बुद्धि का यहाँ क्या काम है, हम वहीं पर चले जाते। तो भारत के अंदर चीजें बने, भारत के अंदर जो सप्लाई है वो इतना बड़ा देश है। जैसे मैंने कई साल नॉर्थ ईस्ट के लिए काम किया है, तो नॉर्थ ईस्ट में इतनी सुंदर चीजें बनती है, लेकिन उसको दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, नॉर्थ में मार्केट मिलते मिलते ट्रांसपोर्टेशन से ही वो मार खा जाते हैं। कि मैं बहुत कोशिश करता था कि वहाँ की इतनी सुंदर शॉल्स है, इतनी सुंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में आपको डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन वो उसकी कॉस्ट इतनी सस्ती है, वो यहाँ आते आते वो इतनी महंगी हो जाती है, तो लोग बोलते भैया हम यहीं पर खरीदेंगे, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। तो इसलिए उस स्थान पर ऐसी चीजें बने कि वो वहीं पर बिके, तो कॉस्टिंग उसका कम हो। और फिर इसके लिए लघु उद्योग भारती की कल्पना ही ये है कि छोटे उद्योग, वास्तविक में ये लघु उद्योग भारती की कल्पना महात्मा गांधी जी के आर्थिक उनके जो विचार थे उसके साथ सीधे सीधे मेल खाने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिसको उपयोग में लाते हैं उन चीजों को नजदीक में उनका उत्पादन होना चाहिए, तो उनको उपलब्धता सहजता से हो जाती है। अब ऐसा करते करते देश में एक ऐसी सरकार आई कि जिस प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हमने लोकल के लिए वोकल होना चाहिए, बाकी भी लोग आते हैं करते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो लोकल है उसके लिए हमने वोकल होना चाहिए। और फिर हमने लोकल को ग्लोबल करना चाहिए। सोच की उड़ान इतनी बड़ी थी कि हम लोकल को हमने ग्लोबल करना चाहिए। ये असली स्वदेशी है, ये मत यूज करो, वो मत यूज करो, ये स्वदेशी नहीं है। स्वदेशी असली क्या है, तो ये यूज करो, तो स्वदेशी यूज करो। तो स्वदेशी में टैलेंट आना, स्वदेशी में सुंदरता आना, स्वदेशी के परिणाम बहुत अच्छे निकलना, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी बनना, इसके लिए भारतीय उद्योगों को पीछे खड़े रहने वाली सरकार की आवश्यकता थी। वो सरकार जब मिल गई तब इस देश के अंदर
एमएसएमईज में एक बहुत बड़ा उठाव आ गया। एमएसएमईज मतलब ही एमएसएमईज की संस्था जो विशुद्ध भारतीय चिंतन और भारत के हित में बनी है, वो लघु उद्योग भारती है। तो जब कृष्णा जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे लघु उद्योग भारती के, तब उन्होंने इसको सोचा कि हमने एक ऐसा बड़ा शो करना चाहिए, और उसकी शुरुआत डिफेंस के और एरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग से की थी। उसको फोकस का क्षेत्र रखा था और बाकी सारी एमएसएमईज उसमें थी। इसको इतना प्रचंड प्रतिसाद मिला कि ये बेंगलोर शहर का एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया। और वो वास्तविक में आज आप सबको इनवाइट भी करता हूं कि आपने उसको कवर करने के लिए आना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि कितना बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है। और इसमें बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारत में 500 स्टार्टअप्स थे, 700 स्टार्टअप्स थे 2014 से पहले। अभी 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं। अब ये 1.25 लाख स्टार्टअप्स में से कुछ लोगों को हमारा स्टार्टअप क्या है, आप सब लोगों को स्टार्टअप का अर्थ मालूम है, एक नई कल्पना। एमएसएमई ऐसी है कि जो ऑलरेडी अपना सारा काम करते आ रही है, प्रोडक्शन करते आ रही है, सालों से उनका काम चल रहा है। लेकिन एमएसएमई के अंदर स्टार्टअप्स, इसके लिए भी इस बार उन्होंने बहुत बड़ा स्थान दिया है। और ये जो इतने सारे रजिस्ट्रेशन हुए उसमें कई सारे स्टार्टअप्स है कि जो इसमें अपना आकर हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट है, उसको लोगों को दिखाने का काम करने वाले हैं। एरोस्पेस में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है। तो एरोस्पेस के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसको डिजाइन करने वाले, सोचने वाले ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। पहले पुराने खिलाड़ी भी हैं और नए प्लेयर्स भी इसमें आ रहे हैं। B2B मीटिंग्स बहुत बड़े पैमाने पर लाइंड अप है। इसके इतने मल्टीपल यूजेज, जैसे आपने देखा कि 8 प्रकार के इसमें सेमिनार्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, और 8 के विषय इतने रिलेवेंट है कि कंटेम्पररी जो आवश्यकताएं लोगों की है उसकी जानकारी देने का, उनकी पूर्ति करने का काम इन कॉन्फ्रेंसेस में होगा। तो हम 3 दिन बेंगलोर क्यों जाए? सिर्फ एमएसएमईज के स्टॉल विजिट करने के लिए नहीं जाए, तो हमें और कुछ ज्ञान मिलेगा जो हमको मालूम नहीं है, वो चीजें मिलेंगी। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आकर कुछ बोलकर जाते हैं, उनको सुनते हैं तो सक्सेस की चाबी मिलती है उसमें। तो एक तरफ कॉन्फ्रेंसेस है, एक तरफ B2B मीटिंग्स है, एक तरफ अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए सुंदर स्टॉल्स है। मुझे अभी कुछ पत्रकारों ने पूछा कोई विदेशी कंपनियों को हमने बुलाया है क्या? तो हमने जरूर पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया है, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए यहां पर नहीं बुलाया है। आप लोग आकर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो, हमारे देश में क्या बनता है और क्या आप खरीदी कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए बुलाया है। क्योंकि ये लघु उद्योग भारती का है, ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरा पक्ष कहा है कि लोकल को ग्लोबल बनाइए। ग्लोबल कैसे बनेगा? जब बाहर के लोग आएंगे और इसको देखेंगे तभी तो वो ग्लोबल बनेगा। तो इसलिए लोकल के लिए वोकल होने वाला ये शो है, बहुत बड़ा शो है, और उसको ग्लोबल करने के लिए बाहर से भी पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा। पैन इंडिया एमएसएमई इसमें आ रही है। ऐसा नहीं है कि बेंगलोर में है तो सिर्फ आसपास के दक्षिण भारत के वगैरह। आप तो जानते हैं अभी डिजिटल भारत के कारण कोई भी कहीं से भी कहीं पहुंचता है। इन्होंने मुझे कर्टन रेजर के लिए बुलाया तो मैं गया था, तो वो जो हॉल उन्होंने बुक किया था वही पुराने जो लोग आकर गए थे इस शो में पार्टिसिपेट करके गए थे, वो लोग बड़े उत्साह से आ रहे थे कि इस बार क्या क्या नया होने वाला है। और मुझे इतना आश्चर्य लगा कि वो 550 कैपेसिटी का हॉल ही पूरा भरा हुआ था। तो मैंने कहा कि आपका शो तो इधर ही पूरा बुक हो गया, अभी और आपको कोई स्कोप है? तो उन्होंने कहा नहीं है, स्कोप है, और पूरा उसको ऑलरेडी इट इज प्री बुक्ड। और बस मैंने कहा कि दिल्ली में मैं रहता हूँ और कुछ इस
एडवाइजरी बोर्ड का एक मेंबर बनाने के कारण कुछ फैसिलिटेट मैंने करना चाहिए, तो मैं आप लोगों से तो सभी जितने चेहरे में देख रहा हूँ लगभग सभी से मैं सालों से जुड़ा हुआ हूँ, नहीं तो आगे जुड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे सब लोग आए, इसको समझे, इसका प्रचार करें, देश हित में इसका प्रचार करें और इसको लोगों के सामने रखें, इसको देखने के लिए आए और अधिकाधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। इसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया था। अब जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा तरुण देश है और भी आगे बनेगा। 80 करोड़ आबादी तरुणों की है, टैलेंट है, काम करने की इच्छा भी है। तो एमएसएमईज जितनी बढ़ेगी उतनी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तब देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। और मोदी जी ने 25 साल का लक्ष्य रखा है, उस 25 साल में 2 साल तो अभी निकल गए, अभी अपने पास मान लीजिए 23 वर्ष है। तो ये जो युवा है, इन युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसमें विजिटर्स में अधिकाधिक युवा है, इसमें आप लोग मदद कर सकते हैं, देश हित में मदद कर सकते हैं, क्योंकि युवा जो है वो सब क्लिक करता है और मोबाइल पर ही आप लोगों को देख लेता है, वो इंतजार नहीं करता कि कल क्या आने वाला है, वो तुरंत के तुरंत उनको चाहिए। तो इसमें युवाओं का पार्टिसिपेशन भी बढ़े, देश भर के युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, आकर देखे और उनको वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। जैसे लोग इतने सारे कंपनियां आती है तो उनकी आवश्यकताएं क्या है पता चलते हैं, कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, नेटवर्किंग होता है, नए नए परिचय बढ़ते हैं। ऐसे मल्टीपल जिसको कहेंगे उपयोग, सभी का इसमें उपयोग है। और मैं तो आपको कहूंगा कि आपको भी बहुत सारा छापने जैसा मिलेगा, क्योंकि आपको भी जो मालूम नहीं था ऐसी कई चीजें वहां जब देखने को मिलेगी। So I think you will find many stories when you visit this India Manufacturing Show. कि आपको मालूम नहीं था, अच्छा ऐसा भी हो रहा है क्या। तो इसलिए एक अद्भुत कार्यक्रम है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, और हमारे गौड़ा साहब भी जो केंद्रीय मंत्री मिनिस्टर वो भी इसमें रहेंगे, शोभा करंदलाजे भी रहेंगी और गोवा के मुख्यमंत्री रहेंगे और कुछ बड़े राज्यों ने पूरा का पूरा अपना एक पैवेलियन बुक कर दिया है कि हमारे राज्य से जो एमएसएमईज है उनको हम यहाँ प्रस्थान देंगे। तो इसीलिए इन सब लोगों का जो एक मिला जुला एफर्ट है, जैसे यहाँ पर हमारे IEML के लोग जो है बहुत बड़े हमारे सालों से साथ में जुड़कर ये काम करते हैं, जिनका नोएडा में ही बहुत बड़ा हब है। तो हम सब लोग मिलकर इस इवेंट को सक्सेसफुल करें, ये आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ। आप अपने मीडिया के चैनल और आपके पेपर और आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसको अच्छी पब्लिसिटी दें और इसको आकर देखें, और देखने के बाद मुझे विश्वास है कि उससे भी ज़्यादा पब्लिसिटी आप अपने आप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री सुनील देवधर, मेंबर एडवाइजरी बोर्ड IMS 2025। सर आप तो मेंबर नहीं, आप चेयरमैन होना चाहिए IMS 2025 का, बिकॉज इसका मार्गदर्शन आपने बहुत अच्छे से किया सर। आप सभी के पास हमने प्रेस ब्रीफिंग का नोट दिया है। इन एडिशन टू दैट अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको माइक देंगे आपको क्वेश्चन पूछने के लिए। इधर से एक और Good afternoon. This is Sanjay Agarwal. It's a very welcome move कि IMS में we've been attending earlier. I was just thinking कि इसमें there are 3 spaces. One is the medical, because when you're talking about production manufacturing, so India we are somewhere in the medical devices. There is a lot of space abhi. And then we have the ISRO programs where in space is there. तो इसमें उनको आप लोग ने शायद अभी नहीं जोड़ा है डायरेक्टली। एंड बाबा कल्याणी जो आएंगे तो उनका कोई प्रेजेंटेशन होगा और जस्ट ही विल बी अ चीफ गेस्ट एट द इनॉग्रल? Yeah, very good question. Actually, ISRO is participating
ISRO chairman is also one of the guest of honor. That's first point. Yes. And ISRO, they have come with the presentation, display of their own products, which is likely to be MSME sector. And just 3 days before we met, myself and Jitendra, we were there with the ISRO chairman, and he is supporting and he is fully participating. Point number 1. And Baba Kalyani ji himself, he has already taken more than 100 square meters of big hall, and he is coming with all his product, and he wanted the genius MSME suppliers to support his production. So Baba Kalyani ji is not only the advisory board chairman, he is also participating in the exhibition and displaying all these required products. He'll talk about that global manufacturing जो सचिन सर ने बोला है. Yeah. He'll be there in that he's- IMSCON conference में रहेंगे. No, his persons are there also in Right. conference. Right. And he will be the chief guest in the inauguration. Right. And his technical team will be there in the conference hall Right. portion also. Thank you so much. Sir, Deshi, you are moderate this side your from name and moderate side from News Nation. मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हम MSME और जो अपने प्रोडक्ट्स डिफेंस सेक्टर में डेवलप कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं दरअसल उसको असेंबल ज़्यादा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कम कर रहे हैं, और उससे डिफेंस सेक्टर में चुनौतियाँ ऐसी होती हैं कि अगर कोई भी कंपोनेंट्स हम चाइना या फिर टर्की या इस तरह के कंट्रीज का यूज़ कर रहे हैं जो हमारे प्रति होस्टाइल हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़ के नहीं होते. तो ये बिगेस्ट चैलेंज देखे गए हैं हाल के वर्षों में. उसको काउंटर करने के लिए इसमें क्या कोई सेशन रखा गया है, क्या उस तरह की कोई तैयारी है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी यूज में आए तो कारगर साबित है. See, actually we have already had a very deep discussion with the defense manufacturing companies. So they are 100% they wanted to make indigenization as well as the small product manufactured by MSME. So we are having a special session for procurement for companies from the defense and aerospace company to identify their products which can be developed in India, which is a substitute for the import substitution. So thereby we are changing little bit, or we are making a special efforts to make the components or subcomponents in the supply chain according to the requirements of the present defense departments. Sir, yes, sir. I want to add one important point here. It's a very good question you asked. See, now there is a Defense Procurement Policy 2025, which was released just on 23rd, last week, 23rd October. That arrests such kind of issues. So that takes care of issues and ensuring that our indigenization content is increased. For example, by some major reforms that you will see the details. Two, by boosting the export. So that means we are not really doing the import substitution, but also doing that boosting the export. So thanks to the government of India for introducing this policy. I thought it will be very handy. Thank you so much. Sir, name and media name. इधर सर, मेरा नाम